بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 57 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ، مصنف امجد جاوید۔ یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 57، صفحہ نمبر 524 سے۔ میں گھر پہنچا اور سیدھا افضل رنداوے کے پاس گیا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، اگرچہ وہ مسکراتے ہوئے ملا مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھ کے تو وہ بولا، پتہ نہیں جمال، میں تم سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا لیکن تم تھے نہیں۔ اب پتہ چلا کہ تم ادھر ہو تو میں نے تم سے یہ شیئر کرنے کا سوچ ہی لیا۔ وہ بات کرتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ رنداوا صاحب، آپ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس طرح تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، میں نے سکون سے کہا۔ تو وہ کتنی دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہیں پتا ہے نا کہ میں معطل ہو گیا تھا اور وہ مجھے شاہ زیب اور وقاص پیر زادہ نے کروایا تھا۔ تو کیا آپ اب تک بحال نہیں ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ ہو گیا ہوں لیکن ابھی تک زیر عتاب ہوں، ان کی رسائی اوپر تک ہے۔ میں ڈی ایس پی ہو سکتا ہوں اگر کوئی کام دکھا دوں تو۔ وہ اصل بات پر آ گیا۔ مثلاً کیسا کام؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو تم میری مدد کر پاؤ گے یا نہیں، لیکن یہ بات تیرے پاس امانت ہوگی۔ اس نے اپنے طور پر تسلی چاہی تو میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ کہو، بلا جھجک کہو، میں تمہیں شروع سے لے کے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر کہتا چلا گیا، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے ڈیروں پر بدماش، ڈاکو اور اشتہاری عام طور پر رہتے ہی ہیں۔ ہم چاہیں بھی اور ہمیں معلوم بھی ہو تو ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ میں معطل تھا۔ انہی دنوں کچھ خفیہ والے ادھر آئے۔ انہوں نے یہاں سے کچھ ایسے سگنل پکڑے ہیں جن کی انہیں سمجھ یہی آئی ہے کہ یہاں اس علاقے میں ملک دشمن لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم یہاں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ وہ واپس چلے گئے۔ ممکن ہے وہ تفتیش جاری رکھیں، مگر میں نے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ مہینہ بھر پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں چودھری شاہ نواز کے ڈیرے پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسی سکون سے پوچھا تو وہ صاف گوئی سے بولا، جمال، میں معطل ہوا، محکمے میں بڑی سبکی ہوئی ہے، بحال بھی ہو گیا، کوئی گناہ ثابت بھی نہیں ہوا، نوکری ٹھیک ہے، مگر میں اپنا یہ تاثر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ وطن کی محبت میں کرنا چاہتا ہوں۔ سال بھر بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا، بس۔ یہ کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے ایک بار وقاص پیر زادہ لے کر گیا تھا وہاں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شاہ زیب نے میرا گھر چلایا تھا۔ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے۔ تم نے دیکھا ہوا ہے وہ ڈیرا؟ اسے تیزی سے پوچھا تو میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر پلان کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، کھل کر ایک دم سے چھاپا مارا جائے یا پھر خفیہ طور پر وہاں جایا جائے۔ میں ان دونوں صورتوں میں ساری گیم اپنی طرف لے آؤں گا، اس کی تم فکر نہیں کرو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بندو کے بارے میں پتا ہے یا وہ بھی معلوم کرنے پڑیں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کنفرم ہے، میرے پاس ان کی تصویریں ہیں، یہ سیل فون میں ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا، گڈ، لیکن ایک بات ہے رنداوا، یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہوئی کہ تم مجھے ہی کیوں بتا رہے ہو اور میری ہی کیوں مدد چاہتے ہو؟ تم یہ سب کچھ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ میں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ تمہارا یہ سوال بنتا ہے جمال، کیا آج ہی وہ تمہارے پاس نہیں آئے؟ اور پھر تم خود بتاؤ، اس علاقے میں کوئی دوسرا ہے؟ بتا دو،
जो ये काम कर सके। उसने तेजी से कहा, बात ये नहीं, मुझसे भी बड़े जिगरे वाले यहाँ पर हैं, मगर इन्हें कोई चोट नहीं लगी। चिड़िया को भी तंग करोगे तो वो सांप को मारने पर तुल जाती है। खैर, जब कुछ करना हो तो मुझे बता देना। मुझे मालूम था तुम मेरी बात मान जाओगे। मेरी तरफ से तुम चाहे तो आज रात को ही। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप साथ होगे या ये काम मुझे ही करना होगा? मैं साथ होऊंगा, बल्कि पूरी नफरी होगी। उसने जोश से कहा, मुझे प्लान बताओ, सब कर लेंगे। मैंने कहा तो वो एकदम से उठ गया, फिर चमकती आंखों से मेरी तरफ देखकर बोला, मैं सिर्फ 2 घंटे बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ये कहकर वो मेरी सुनी अनसुनी करता हुआ बाहर निकल गया और मैं अपने बदन में वो सनसनी महसूस करने लगा जो लोगों को नचाने के वक्त मेरे अंदर फैलती थी। नया पैराग्राफ। कराची के पोश इलाके में मौजूद शाहिद मोइन के बंगले में पहुंचे तो उसका बेटा वहीं उसका मुंतजिर था। दादा अपने पोते को लेकर आ गया था। जिस वक्त सारा अपने बेटे को इंतहाई जज्बाती अंदाज में मिल रही थी, उस वक्त जसपाल को अपनी माँ याद आ गई। जब वो इस दुनिया से गई थी तो बिलाशुबा उसे भी अपना ही बेटा याद आया होगा। वो इस मंजर में दरिंदगी को महसूस कर सकता था। आंसू में लिपटी हुई खुशी का मंजर ही अजीब होता है। खुशगवार माहौल में डिनर के बाद जसपाल और दानी बाहर लॉन में आ गए। बड़े लॉन के साथ पाम और पपीते के दरख्त थे। लॉन के चारों तरफ फूल खिले हुए थे। कराची की फजा में भी अजीब खुमार आलूद था। इस पर तबसरा करते हुए तानी बोली, जसपाल, कितना अच्छा मौसम है। हाँ है तो, ऐसा ही तुमने सहरा में ज्यादा वक्त गुजारा है ना, इसलिए तुझे भला महसूस हो रहा है। खैर, अब बताओ क्या प्रोग्राम है, चलें वापस? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ी देर मौसम का मजा लेते हैं, तानी ने हमार आलूद लहजे में कहा तो वो तेजी से बोला, ओए, मैं अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, वापस नूर नगर जाने की बात कर रहा हूँ, जमाल के पास। अभी रोही से कोई इतला नहीं है, जैसे ही वो कहेंगे हम वहां चले जाएंगे। तब तक तो हमें यही रहना होगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो महरल शाह दरमियान में पड़ा है, क्या उसे वजीर आला नहीं भेजा होगा, या ये खुद ही? जसपाल ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे सरमद का फोन आया था। ये मामला आलमी तंजीमों के हत्थे चढ़ चुका है। खास तौर पर भारत मीडिया इसे बहुत उठा रहा है। उसके पीछे जाहिर है रा का हाथ है। ऐसा कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते जिससे पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अब सारे यही चीख रहे हैं कि पाकिस्तान में अकलियतें महफूज नहीं हैं। ये तो है, वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। जसपाल ने कहा, ये तो है ना। अब देखना, ये परसा राम जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो वावेला करेगा कि उसकी जान को खतरा है। ये भारत जाएगा, वहां उसे इस बात को लेकर खूब प्रोपेगेंडा किया जाएगा। किसी ने सारा की बात पर तवज्जो नहीं देनी कि वो मुसलमान क्यों हुई। सभी इस बात पर जोर देंगे कि अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तानी ने जोश में कहा, इधर पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए ना कि वो असल बात बताए। जसपाल ने कहा, ये तो दुख की बात है, यहाँ का मीडिया भी मैच्योर नहीं हुआ। ये सब वक्त के साथ ठीक होगा। तानी ने एक तवील सांस लेकर कहा तो जसपाल बोला, तुम्हारे ख्याल में अब हमारा यहाँ क्या काम हो सकता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। जाहिर है जब उनके दरमियान जायदाद की डील हो जाएगी तो हम जा सकेंगे। तानी ने अपना ख्याल जाहिर किया तो जसपाल सर हिलाकर रह गया। उसके ख्याल में भी यही था कि अभी खतरा टला नहीं है। सारा मसला तो जायदाद की वजह से ही था। वो चहलकदमी करते हुए लान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले गए थे। दोनों में खामोशी छाई थी। अचानक जसपाल ने कहा, तानी, इस तरह तो सारा अब भी खतरे में है। जब तक ये
यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो लोग उसे अब भी निशाना बना सकते हैं। उसके मरने से परसाराम को बहुत फायदा होगा। जायदाद तो उसके हाथ में है ही, वो अपनी हिंदू बरादरी में भी सुरहुरु हो जाएगा। जाहिर है इस कुछ नादीदा कुव्वतों की हमायत भी तो मिल गई है। तानी ने उसे समझाते हुए कहा तो वो एकदम से चौकस हो गया। तानी, इसका मतलब है वो यहाँ पर या कहीं भी सारा पर हमला जरूर करेंगे। जसपाल ने कहा तो तानी गहरी संजीदगी से बोली, इससे पहले हम पर होगा। तो फिर हमें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, जसपाल ने कहा तो तानी ने आंखों से अपनी आमादगी जाहिर कर दी। उस वक्त वो दोनों चलते हुए गेट तक गए और वहां की सिक्योरिटी को अपने हिसाब से जांचने लगे। रात का पिछला पहर था। तानी और जसपाल बंगले की छत पर थे। चांद मगरिब में डूब चुका था, लेकिन आबादी में मौजूद लाइटनिंग के बायस धीमी धीमी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वो दोनों चौकस थे। नया पैराग्राफ। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैं और अफजल रंधावा दोनों एक जीप में वहां पहुंचे थे, जहां से चौधरी शाह नवाज का डेरा कुछ दूर था, लेकिन वहां पर रोशन बत्तियां दिखाई दे रही थी। चांद मगरिब में डूब चुका था। मैं अगरचे एक बार वहां से होकर आया था, लेकिन मुझे पूरी तरह उस डेरे के बारे में मालूम नहीं था कि वो अंदर से कैसा है। मैंने छाके को नूर नगर में ही रहने दिया था कि किसी भी हंगामी सूरत में वो सोहनी और अम्मा का ख्याल रखे। अफसल रंधावा के लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। हम दोनों जीप रोककर अंधेरे में घूर रहे थे। चंद लम्हों बाद एक लंबे कद वाला नौजवान हमारे करीब आया और आते ही बोला, सर वो दोनों मौजूद हैं, ये कंफर्म है, लेकिन कहाँ हैं ये मालूम नहीं हो सका था। वो हैं तो वही डेरे पर ना? मैंने पूछा तो धीमे लहजे में बोला, ये कंफर्म है, उसने कहा और अपने लोगों के बारे में बताने लगा कि वो कहां पर हैं और किस तरह हम तक पहुंच सकते हैं। जरा सी देर में पूरा प्लान तरतीब दे दिया गया। हमने जीप वहीं छोड़ी और पैदल ही डेरे की जानिब चल पड़े। वो डेरे की बाएं जानिब वाली मट्टी से बनी हुई दीवार थी। उसकी ऊंचाई तकरीबन 12 फुट तो रही होगी। मैं अपनी हथियार संभाले और दीवारों में कील ठोंक कर चढ़ने लगा। रंधावा भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। चंद मिनट बाद हम दीवार पर चढ़ चुके थे। अंदर सेन में ट्यूबलाइट की रोशनी फैली हुई थी, जिससे गेट के पास मुझे कोई बंदा नहीं दिखाई दिया। मुमकिन है गेट के पास जो कमरा बना हुआ था उसमें कुछ लोग मौजूद हों। रंधावे को इशारा करके मैं अंदर की तरफ उतर गया। वो मेरे कवर पर था। किसी भी हमले से पहले मुझे फरार कर रास्ता बनाना था। मैं तेजी से गेट के पास कमरे के बाहर पहुंच गया। अंदर रोशनी थी। मैंने पूरे ध्यान से अंदर से किसी की मौजूदगी का एहसास किया। मुझे यूं लगा जैसे अंदर कोई है। मैंने गेट पर देखा, वहां पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। मैं अचानक ही कमरे में दाखिल हो गया। वहां एक बंदा चारपाई पर पड़ा हुआ था। मुझे अपने सामने देखकर एकदम से उठ गया। इससे पहले कि वो अपनी गन उठाता, मैंने उस पर छलांग लगा दी। मैं हाथ में पकड़ी हुई गन उसके सर पर मारी थी, जिसके बायस वो उठ ही नहीं सका। वो बेहोश हो गया था। मैं उसे वहीं पर पड़ा रहने दिया और तेजी से चाबियां उठाई जो उसके सरहाने पड़ी हुई थी। मैं मुख्तात अंदाज में बाहर निकला। इर्द गिर्द किसी को भी ना पाकर मैंने गेट पर लगे हुए ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। जल्द ही ताला खुल गया। अब ये रंधावे का काम था कि वो अपनी फोर्स लेकर कैसे अंदर दाखिल होता है। मैं वापस कमरे में आ गया और उसी चौकीदार को होश में लाने की कोशिश करने लगा। जरा सी कोशिश पर वो होश में आ गया। वो मेरी तरफ खौफजदा निगाहों से देखते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं जो कोई भी हूं, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। तुम सिर्फ इतना बता दो, वो 2 गैर मुल्की कहाँ हैं और किस कमरे में हैं? मैंने आहिस्तगी से पूछा।
اس کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ یہاں کوئی غیر ملکی نہیں ہے، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ تو میں نے اسے فوراً ہی گردن سے پکڑ کر کہا، ہم ایسے ہی انہیں یہاں لینے نہیں آگے، ہمیں پتا ہے وہ یہی ہیں۔ تم نہیں بتاؤ گے تو ہمیں ذرا دیر لگ جائے گی انہیں تلاش کرنے میں، مگر تم جان سے جا سکتے ہو، بولو، میں نے سرد سے لہجے میں کہا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایسے میں دو نوجوان اس کمرے میں آ گئے تو وہ انہیں دیکھ کر بالکل ہی سہم گیا۔ تب وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، اندر والا گیٹ پار کر کے دائیں ہاتھ والے دوسرے کمرے میں ہے وہ، اگر آپ زیادہ شور نہیں کریں گے تو انہیں لے جا سکتے ہیں، وہ اس وقت نشے میں دھت ہیں۔ وہ فر فر بولنے لگا، دیکھو اگر تمہاری یہ معلومات درست ہوئیں تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر غلط ہوئی تو… میں نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ میری بات کاٹ کر بولا، 100% درست ہیں جی، اسے لے جاؤ اور اپنی حفاظت میں رکھو، میں نے کہا اور باہر آ گیا۔ چند جگہوں پر نوجوان پوزیشن لے چکے تھے، بلا شبہ وہ تربیت یافتہ تھے۔ میرے پیچھے 2 لڑکے تھے۔ میں بلا جھجک اندر والے گیٹ پر پہنچ گیا۔ فضا میں سکوت طاری تھا۔ نیا پیراگراف۔ خاموشی گہری تھی، جھینگروں اور دور کہیں مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے محتاط انداز میں چند سیڑھیاں چڑھیں اور انہیں پار کر کے کچھ قدم چلتا ہوا اندرونی عمارت کے گیٹ پر جا پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی، سوائے سناٹے کے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اگرچہ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی، وہ ڈیرا تھا، کسی بھی وقت بھی کوئی بھی اندر باہر آ جا سکتا تھا، لیکن اس وقت گیٹ کھلے ہونے پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو راہداری میں چھوٹے بلب کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کمرے تھے جہاں میں ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا۔ مجھے باہر سے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں غیر ملکی اندر والا گیٹ پار کر کے دائیں طرف والے دوسرے کمرے میں ہیں۔ میں اندر چلا گیا۔ وہ دونوں لڑکے میرے کور پر گیٹ کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بتائے گئے کمرے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا، دروازہ لاک تھا۔ اس وقت میں نے اپنا پسٹل دائیں سے بائیں ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے جیب میں پڑی ہوئی ماسٹر کی نکال رہا تھا کہ دروازہ اچانک کھل گیا اور اگلے ہی لمحے میرے ماتھے پر پسٹل کی سرد نال آن لگی۔ بلا شبہ اسے میری آمد کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ میری تمام تر احتیاط اور پلاننگ ضائع ہو گئی تھی۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ اس سوال پر سوچنے کی بجائے میں اپنے سامنے کھڑے اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ رہا تھا جو انتہائی طنزیہ انداز میں مجھے گھور رہا تھا۔ میری تمام تر توجہ اس کی طرف تھی۔ میں اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکا کہ اندر کون کون ہے۔ اس نے انتہائی حقارت سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم کچے شکاری ہو، اتنے پختہ نہیں ہوئے کہ شیر کی کچھار میں داخل ہو کر اس کا شکار کرو۔ اپنا پسٹل مجھے دو۔ آخری لفظ اس نے بڑے تحقیرانہ انداز میں کہے تو میں نے جواب دینے کے بجائے اچانک جھکا۔ اسی دوران میں نے اپنا گھٹنا اٹھا کر اس کی ٹانگوں کے درمیان پوری قوت سے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کے پسٹل سے فائر ہو گیا۔ وہ دوہرا ہو چکا تھا۔ میں نے لمحے کے آدھے حصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ دروازے کے درمیان فرش پر گر پڑا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری تو اس کے منہ سے عجیب قسم کی آواز نکلی۔ تبھی میں نے سامنے دیکھا، بیڈ پر بیٹھی ہوئی ایک حسینہ میری جانب پسٹل تانے ہوئے تھی۔ میں اس سے ذرا ہٹ کر ایک نوجوان بے بسی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار کیوں نہیں ہے۔
वो हसीना कोई फायर इसलिए नहीं कर पा रही थी कि मेरी पुश पर से वही 2 लड़के भी अपनी गन्नों के साथ उस पर निशाना लिए खड़े थे। मैं उस उधेड़ उम्र शख्स के पर पांव रखे कमरे में चला गया। वो दोनों हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उस हसीना के पास गया और उसके पिस्टल पर हाथ डाल दिया, जो उसने आराम से छोड़ दिया। पिस्टल हाथ से बेड पर गिरने के दौरान उसके चश्मे ज़दन में उसने कलाबाजी खाई और इस तरह मेरे गले आ लगी कि मैं पलटकर फर्श पर जा पड़ा। एक लम्हे के लिए तो मुझे तारे नजर आ गए। मेरी गुद्दी पर चोट लगी थी। मैं संभल ही रहा था कि उसने अपना हाथ मेरे पिस्टल पर डाल दिया। मैं उसकी हिम्मत की दाद दिए बगैर न रह सका। वो मुझसे पिस्टल छीन चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने वो पिस्टल तान लिया मुझ पर और बोली, तुम क्या समझते हो कि हम इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाएंगे? बोले, कौन हो तुम? उस लड़की के लहजे में हुक्म के साथ हकारत भी थी। तभी मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे हाथ ही नहीं आई, बल्कि मेरे सीने से भी लगी बैठी हो। और कितना करीब आऊं मैं तुम्हारे? बकवास बंद करो और बताओ, वरना गोली मार दूंगी, वो चीखते हुए बोली। तुम्हारा चाहने वाला डार्लिंग, मैं फिर से तंजिया लहजे में बोला तो वो बन्ना गई। उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपने लोगों से कहो कि हथियार फेंक दे। वो तो हथियार नहीं फेंकेंगे, तुम चाहो तो कोशिश कर लो, मैंने हंसते हुए कहा। तो उसने मेरी पूरी बात सुनकर यूं मेरी तरफ देखा जैसे वो कोई और ही फैसला कर चुकी हो। तभी उसने मुड़कर उस नौजवान से इंतहाई गुस्से में कहा, उठ बेगैरत, आगे बढ़ और इसे बांध, मैं देखती हूं कि ये कैसे फायर करते हैं। इससे पहले कि वो नौजवान आगे बढ़ता, वो उधेड़ उम्र शख्स अचानक उठा और दाएं जानब खड़े लड़के से गन छीनने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। मुमकिन है उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती अगर बाएं जानब वाला लड़का अलर्ट ना होता। उसने गन उसके सर पर मारी तो वो फिर से फर्श पर जा पड़ा। इस दौरान लड़की की तवज्जो उसकी तरफ हुई, जिसका मैंने भरपूर फायदा उठाते हुए उसे जोर से ऊपर उछाला और पूरी कुव्वत से कोहनी उसके सीने पर मारी। वो दोहरी होती चली गई। इस सूरत हाल को देखकर उस नौजवान ने अपने हाथ सर पर रख लिए, जिसका मतलब ये था कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर चुका है। दोनों लड़कों ने इन्हें बांधने की बजाय बाहर की जाने महसूस आवाज दी। अगले चंद लम्हों में बाहर से कई सारे लोग आ गए। उन्होंने आते ही सबको बांध लिया। लड़की की आंखों में इंतहाई नफरत थी। वो बंधी हुई अजीब सी लग रही थी। पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। वो तीखे नकूश वाली, छरीरे बदन वाली थी। उसके गहसू काफी लंबे और घने थे। उसकी स्याह आंखें बहुत गहरी थीं। चलो अब निकलो, रंधावा भोला, जो न जाने कब वहां आ गया था। तभी मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि उन्हें हमारी आमद से पहले खबर कैसे हुई। इन्हें पहले पता था? इन्हें पहले सच में पता था? वो हैरत से यूं बोला जैसे से यकीन न आ रहा हो। मैंने सर हिलाते हुए कहा, उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत जदीद, तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ पर क्या कुछ है। फिर भी मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कि तुमने हमें बांध लिया। खैर, कब तक? बस तुम ये जान लो कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। उस लड़की ने हकारत से कहा तो मुझे उसका लहजा इंतहाई बुरा लगा। इससे पहले कि मैं उसका मुंह तोड़ देता, रंधावे ने जोश से कहा, ओए, अगर कैमरू वाली बात है तो बस फिर जल्दी निकल, इन्हें ले जा, बाकी मैं देखता हूं। अब ये डेरा हमारे कब्जे में है, तुम निकलो, इसकी बातों में ना आओ। रंधावे ने बहुत माकूल बात की थी, इसलिए मैंने वहां की तलाशी लेने के बजाय इन्हें उठाने का इशारा किया और तेजी से बाहर निकलता चला गया। बाहर वो मलगजी रोशनी थी। इन तीनों को अंदरूनी कमरों से बाहर लाने तक चंद मिनट लगे।
चौकीदार एक दूसरी गाड़ी में पड़ा था। उसी वक्त हमारी गाड़ी आ गई थी। इन्हें इसमें फेंका और हम डेरे से निकलते चले गए। बाकी सब न जाने किस तरफ निकल गए थे। तकरीबन घंटे भर बाद मैं उन्हें लेकर अपने डेरे पर था। छाका वहीं मेरा इंतजार कर रहा था। वो तीनों फर्श पर बंधे हुए पड़े थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो तीनों होश में थे। मैंने इस उदेड़ उम्र शख्स को बालों से पकड़ा और सर्द लहजे में पूछा, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो? मेरा नाम अजमल है और मैं लाहौर के करीब रहता हूं, वहां से आया हूं, उसे बड़े सुकून से कहा। तो मैंने उसे झटका देते हुए पूछा, असल नाम और असल जगह बताओ। ये जान लो कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा हर रेशा बताएगा। तो हर रेशे से पूछ लेना, उसने लापरवाहना अंदाज में कहा। मुझे तप चढ़ गई। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, चलो फिर ऐसे ही सही। ये कहकर मैं उठ गया और करीब खड़े लड़के से कहा, इसके कपड़े उतार दो और देखो ये कितना मुसलमान है या नहीं। तुम्हें कोई शदीद गलतफहमी हो गई है मिस्टर। हम यहाँ अपने सरकारी काम से मौजूद हैं। चाहो तो चौधरी शाहनवाज को बुलाकर पूछ लो, बाद में पछताना मत। मैं तुमसे। उसके लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए। वो लड़का उसके कपड़े उतारने लगा। वो उसके काबू में नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर से 2 मजीद लड़के आ गए। चंद मिनट बाद उसके कपड़े उतार दिए गए। वो मुसलमान नहीं था। देखो, मैं तुम पर तशद्दुद नहीं करना चाहता। अपने बारे में असल बात बता दोगे तो मुमकिन है मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच लूं। तुम लोग कौन हो? उसने ढीले से लहजे में पूछा। तो मैं हंसते हुए कहा, हमें बिजनेसमैन कह लो, हर तरह का कारोबार करते हैं। जैसे जंगल से जानवर पकड़ लिया और उसे ऐसे शख्स को बेच दिया जो इस जानवर को पसंद करता हो, जैसे तुम लोग, हम उन्हें दे देंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम लोगों को बेचे या रख लें या मार दें या फिर उन्हें ही वापस कर दें जिसने तुम लोगों को पाला है। हमें तो नोटों से गर्ज है प्यारे। मतलब तुम समझ ही गए होगे, अगवा बराए तावान। मैं तुम्हें नोट देता हूं, तुम हमें छोड़ दो। उसे तेजी से कहा, कैसे दोगे? तुम तो हमारे पास हो और तुम्हारे तन पर तो कोई कपड़ा नहीं है जिस पर कोई पैसा पड़ा हो। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, चौधरी शाहनवाज को पैगाम दे दो, तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम मिल जाएगी। वो संजीदगी से बोला, मैं अपनी मतलूबा रकम का अंदाजा कैसे लगाऊंगा? ये तो पता चल गया है कि जो तारफ तुमने कराया है वो गलत है। तुम जो कोई भी हो, अपना आप छुपा रहे हो। मुझे इससे गरज नहीं तुम कौन हो, क्या करते हो। खैर ना बताओ, मैं इस लड़की पर ट्राई करके देख लेता हूं। तुम चाहते क्या हो? लड़की ने पूछा। मैं नोट चाहता हूं, नोट। मैंने किसी लालची बंदे की तरह कहा तो वो बोला, कहा तो है, चौधरी शाहनवाज से राब्ता नहीं। हमारा तरीकाकार कुछ अलग से है। वो ये कि तुम तीनों में से एक बंदे को छोड़ दिया जाएगा। वही हमारा पैगाम देगा और रकम पहुंचाएगा जहां हम कहेंगे। हम फोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते कि वो ट्रेस हो जाता है। खैर, तुम लोगों की कीमत का अंदाजा लगाना है। अपने बारे में बताते हो या करूं उस हसीना से बात? ये कहते हुए मैंने उसके चिकने गालों पर किसी शहद की मानद हाथ फेरा तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने कहा ना कि चौधरी, उसने कहा तो मैंने पूरी कुव्वत से थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और सख्त लहजे में कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर मैंने अपनी पिंडली से बंधा हुआ हंजर निकाला और उसके सीने पर क्रॉस का निशान बनाया। नोक इतनी गहरी नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी खून तेजी से निकलने लगा। वो एकदम से बिलबिलाते हुए चीख उठा,
कमरा उसकी धाड़ों से गूंज गया। मैंने करीब रखा हुआ नमक उठाया और उसके जख्मों में भरते हुए कहा, सुना है ये तुम्हारे मुल्क में बहुत महंगा है और हम इसे खाने की बजाय यूं भी इस्तेमाल करते हैं। अब भी बोलोगे या? मैंने ये कहते हुए उसकी रान की तरफ इशारा किया। मैं अजमल हूँ, अजमल मसीह। तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मैं किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, उसने धाड़ते हुए कहा। तो मैंने उसकी रान पर जहम बना दिया और कहा, तुम सोचो मैं इस हसीना से पूछता हूँ। ये कहकर मैं उसकी तरफ लपका तो वो तेजी से बोली, इतने मर्द हो तो मुझे खोलकर। लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए। मैंने हंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। मैं नहीं चाहता कि मेरे नोट कम हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुझे जिंदा रखूं। ये कहते हुए मैंने लड़कों की जानब देखा। उस नौजवान के भी कपड़े उतारने का इशारा किया। तभी वो लड़का तेजी से बोला, मैं मुसलमान हूँ और ये दोनों इंडियन हिंदू हैं। मैं फरहान हूँ और मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। ठीक है, तुम बताओ। अगर तुम्हारी बात की तस्दीक हो गई तो। मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगा। उसने एक लम्हे को सोचा और कहने लगा, मैं लाहौर रहता हूँ, अल्लामा इकबाल टाउन में। ये मुझे वहीं मिली। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।